situations that we have to cover. The first situation, the slides that you can see right now are just a basic recap of what we've already discussed last week. And I just wanted to let you know कि पहली situation हमारी cover हो चुकी है, in which we made sure that our subject and verb are agreeing. The situation was such that the subject and verb have to agree in a situation where the subject comes after the verb. Verb pehle aa raha hai, subject baad mein aa raha hai. Why is it such a big deal? Because we're not used to such situations. As you can see, we're not used to such situations. And the golden rule of subject identification, as I told you last week as well, was always to focus on the verb and see which noun or pronoun the verb of the sentence is directly connected to. Noun या pronoun जो भी verb से directly connected होगा वो आपका subject होगा. आपको ये देखना है कि आपका subject singular है या plural है, और फिर उसके हिसाब से आपको verb selection करनी है. ठीक है, ये तमाम बातें जो अभी आप अपने सामने देख रहे हैं, ये सारी बातें हम पिछले हफ्ते डिस्कस कर चुके हैं. If you have any queries or concerns, you can definitely contact me personally. I can sort out all your questions and concerns. Today we're going to talk about our second situation, which is also related to subject verb agreement, but it's a little different, it's a little unique. इस situation में हम बात करें subject verb agreement की when the subject and verb are separated. Okay, so I have tried to make an illustration here. If you can see in front of you, we have a sentence. Let me just note here. Here, okay. Okay, I have a sentence. This is my sentence. Okay, ये subject है, ये verb है, और एक चीज है जो कि दोनों को एक दूसरे से separate कर रही है. Okay, there's something in the middle, there's something in between the subject and the verb which are separating them from each other. Okay, so what is that something? That something is called a modifier. Now, the word modifier is pretty self-explanatory. लफ्ज मॉडिफायर काफी ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. इससे आपको पता चल जाएगा कि मॉडिफायर क्या करता होगा. इट मॉडिफाइज, बट द क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मॉडिफाई. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स रिगार्डिंग अ मॉडिफायर. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ग्रामेटिकल modifier. Okay, so what is a grammatical modifier? There are three things that you need to keep in mind regarding a modifier. The three things are written right in front of you here. Number one, a modifier is extra detail about the subject of the sentence. Okay, so it's extra detail about the subject of the sentence. A modifier is a phrase. It's a combination of 3, 4, 5, 6, 7, 8 words. Word के number के ऊपर कोई limit नहीं है, कितने भी अल्फाज हो कोई problem नहीं है. Usually it's a short phrase that gives us extra information about the subject of the sentence. Okay, a second thing that you need to understand about a modifier is that a modifier must always be placed next to the subject. Modifier हमेशा subject के बराबर में लिखा होता है. ठीक है बेटा, ये बात ध्यान में रखिएगा. मॉडिफायर अगर सब्जेक्ट के बराबर में ना हुआ बेटा, तो उस मॉडिफायर को हम मिसप्लेस्ड मॉडिफायर कंसिडर करते हैं. ठीक है, मॉडिफायर अगर सब्जेक्ट के बराबर में ना हुआ तो उसको हम मिसप्लेस्ड मॉडिफायर कंसिडर करते हैं. तो सिंस आई एम सेइंग अ मॉडिफायर मस्ट ऑलवेज बी नेक्स्ट टू द सब्जेक्ट, देयर आर टू वेज इन व्हिच यू कैन राइट इट. नंबर वन SM एंड नंबर टू MS. SM का क्या मतलब है? सब्जेक्ट पहले आ रहा है और मॉडिफायर फौरन उसके बाद आ रहा है. और MS का मतलब है मॉडिफायर पहले आएगा और सब्जेक्ट उसके फौरन बाद आएगा. अगर इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन नहीं है, अगर SM नहीं हो रहा या MS नहीं हो रहा, तो उस मॉडिफायर को हम मिसप्लेस्ड मॉडिफायर कहते हैं. ये बात ध्यान में रखिएगा. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज सैट में बहुत सारे सवालात मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स पे आ चुके हैं इन द पास्ट. ओके, आई विल गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स इन अ मिनट और टू. Okay, the third point that you need to keep in mind regarding a modifier is that if you eliminate a modifier from a sentence, the sentence still stands grammatically complete. Okay, the sentence still stands grammatically complete. What do we mean by grammatically complete? You must remember that beta. पिछले हफ्ते हमने क्या बात की थी कि जुमले को जुमला बनाने के लिए we need at least one subject and we need at least one verb, and they both need to agree. We need at least one subject, we need at least one verb, and they both need to agree. अगर agreement हो रही है और subject verb मतलब दोनों के दोनों same level पे है, subject singular, verb singular, subject plural, verb plural, तो हमारा जुमला grammatically complete है.
ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मॉडिफायर सब्जेक्ट के बारे में इजाफी इंफॉर्मेशन जरूर है, लेकिन मॉडिफायर सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, पिछले हफ्ते हमारी काफी डिटेल्ड इस हवाले से डिस्कशन हुई थी कि हमें तो ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं है जुमले को जुमला बनाने के लिए। ही सैट, आगे मैं लिखूं ऑन अ सोफा या ना लिखूं ऑन अ सोफा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही सैट बजाते खुद एक मुकम्मल जुमला है। नाउ व्हाट इज द चैलेंज? in rule number 2, what is the challenge? The challenge is not to get distracted by modifiers, as we must focus on subject verb agreement. होता क्या है, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, जिनकी प्रैक्टिस कम होती है, उनको लग रहा होता है कि मॉडिफायर का कोई लफ्ज सब्जेक्ट है, जबकि याद रखिएगा मॉडिफायर का कोई भी लफ्ज सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मॉडिफायर सब्जेक्ट के बारे में इजाफी इंफॉर्मेशन है। तो आपको जुमले में जब भी मॉडिफायर नजर आ रहा हो, आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने मॉडिफायर को आइडेंटिफाई करके जुमले में से हटा देना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि वो फजूल है, यूजलेस है, उसका कोई पर्पस नहीं है, बिल्कुल पर्पस है बेटा, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि जुमले को इनकम्प्लीट कर दे। मतलब हम ये नहीं कह सकते किसी भी जुमले में कि चूंकि फलाना जुमले में मॉडिफायर नहीं है इसलिए ग्रामेटिकली कंप्लीट नहीं है। ये कहना ना इंसाफी है। अगर मैं ये कहूं कि फलाना जुमले में सब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये सब सेंटेंस नहीं है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल। अगर मैं कहूं किसी जुमले में वर्ब नहीं है इसलिए ये सेंटेंस नहीं है, दैट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन मैं ये कहूं कि किसी जुमले के अंदर मॉडिफायर ना होने की वजह से वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ये बात जायज नहीं है। ठीक है बेटा, ये बात जहन में रखिएगा। let's consider a couple of very super easy examples. Okay, I've written 2 sentences in front of you which are very basic, but I just want you to understand how a modifier looks. Okay, तो पहला जुमला देखते हैं। इमरान खान कॉमा फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कैप्टन कॉमा इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये हो गया पहला जुमला। अब दूसरे जुमले को जरा 1 मिनट के लिए आप इग्नोर करें, पहले जुमले को ही देखें। पहले जुमले का आपका सब्जेक्ट जो है वो इमरान खान है। कैसे पता चला आपको आपका सब्जेक्ट इमरान खान है बेटा? आपको इस तरीके से पता चला कि आपका जो जुमले का वर्ब है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है इमरान खान के साथ। आप देख सकते हैं इस जो है आपके सेंटेंस में वो एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो क्वेश्चन जहन में उठता है कि डैश इज द प्राइम मिनिस्टर of Pakistan. Imran Khan is the Prime Minister of Pakistan. So since Imran Khan is the noun, proper noun, which is directly connected to the helping verb is of the sentence, Imran Khan becomes the subject of my sentence. Okay? Now, अब आप देख सकते हैं बहुत clearly, former पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कैप्टन, ये जो फ्रेज है 5 अल्फाज का, ये आपका मॉडिफायर है। ये आपका मॉडिफायर। अब मॉडिफायर के हवाले से हमने 3 बातें पढ़ी थी बेटा अभी हमने क्या पढ़ा था? एक मॉडिफायर एक फ्रेज होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जो कि सब्जेक्ट के बारे में इजाफी इंफॉर्मेशन देता है। आप यहां देख सकते हैं फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कैप्टन जो है वो इमरान खान के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट? ओके, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि मॉडिफायर को हमेशा सब्जेक्ट के बराबर में होना जरूरी है। तो यहां आपको नजर आ रहा है एसएम कंस्ट्रक्शन हो रही है, एसएम कंस्ट्रक्शन हो रही है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, मॉडिफायर फौरन बाद में आ रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर मैं चाहूं तो इसको मैं स्विच भी कर सकता हूं। मैं इसको एमएस कैसे बनाऊंगा? मैं मॉडिफायर पहले लिखूंगा, सब्जेक्ट बाद में। मिसाल अगर मैं कहूं फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कैप्टन कॉमा इमरान खान इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो भी एक्यूरेट होगा, उसको हम एमएस कंस्ट्रक्शन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर हालत में सब्जेक्ट को मॉडिफायर के बराबर में होना जरूरी है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट अगर आप देखें तो वो ये है कि अगर हम मॉडिफायर को जुमले में से एलिमिनेट कर दें तो भी क्या हमारा जुमला ग्रामेटिकली कंप्लीट होगा? बिल्कुल होगा बेटा, क्योंकि हमने काफी डिटेल में ये बात की हुई है कि जुमले को जुमला बनाने के लिए वी नीड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, at least one subject and one verb, and modifier को कट करने के बाद भी इमरान खान is the prime minister of Pakistan is a complete sentence. Now when I'm saying point number 3 कि even if you eliminate the modifier from a sentence, the sentence is grammatically complete. Mind you, I'm not saying that a modifier is useless और उसको हमेशा निकाल देना चाहिए, मैंने ये कभी भी नहीं कहा। लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि मॉडिफायर जुमले की बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट नहीं है। गालिबन आप में से एक आध बच्चे ने मुझसे पिछले हफ्ते भी ये सवाल पूछा था, ऑब्जेक्ट के हवाले से पूछा था गालिबन। मैं वही आंसर मॉडिफायर के ऊपर अप्लाई करके आपको बताऊंगा कि देखें बेटा, मैं ये नहीं कह रहा ऑब्जेक्ट्स आर यूजलेस एंड यू शुड नेवर राइट ऑब्जेक्ट्स इन सेंटेंसेस। यू शुड, यू मस्ट in fact. But the problem is that that a sentence does not become complete or incomplete on the basis of the object's existence in the sentence. In order to complete a sentence, ठीक है, we just need
one subject and one verb, and they need to agree with each other. Okay, so the first sentence is pretty simple. Let's look at the second sentence. Karachi, the biggest city of Pakistan, has a population of over 25 million, 2.5 crore. You can see Karachi is the subject because it's directly connected to the helping verb has. Okay, and the phrase "the biggest city of Pakistan" appears to be my modifier, which is giving us extra information about Karachi. Okay, and as I said, subject modifier agree मतलब parallelism है यहाँ. अगर यहाँ मैं चाहूँ तो MSP कर सकता हूँ. The biggest city of Pakistan, comma, Karachi has a population of over 25 million. And to prove my third point, if I cut out the biggest city of Pakistan, my sentence would still be complete because Karachi has a population of over 25 million, has a subject and a verb, and both of them are agreeing with each other. But what I want you to understand is, देखो, आपके लिए सेकंड सेंटेंस में और फर्स्ट सेंटेंस के अंदर मॉडिफायर शायद थोड़ा गैर जरूरी हो. आप क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, you know the political environment of Pakistan, you live in Karachi, you're aware of how many people live along with you in the city. तो आप ये शायद सोच रहे हो कि फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कैप्टन आपके लिए बिल्कुल अननेसेसरी है, एंड सेम गोज फॉर द सेकंड sentence, the biggest city of Pakistan, आपके लिए बिल्कुल unnecessary है. लेकिन यकीन जाने, there are a lot of people who do not know what Karachi is, where Karachi is. For those people, Karachi, the biggest city of Pakistan, this modifier would be super important. ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा. I'm not saying that modifiers are useless and you should scratch them out. I'm just telling you to scratch them out to check whether you've identified the modifier correctly or not. Okay, now regarding these two examples, do you have any questions? Please raise your hand. Please ask me those questions ताकि हम आगे बढ़े. Basically, modifiers and alteration or improvisation of a sentence. बेटा मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही. Can you speak up, please? Basically, modifier is a alteration or improvisation of a sentence. Oh yes, but don't use the word sentence. I don't like the word sentence. You have to say subject. It is a modification. It's an alteration of the subject of the sentence. Yes, ठीक है. Because देखो बेटा, subject के अंदर मतलब sentences के अंदर subjects होते हैं, adjectives होते हैं, adverbs होते हैं, predicates, prepositions, conjunctions, interjections, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. Modifier बिलखुसूस सिर्फ और सिर्फ subject को target करता है. इनफैक्ट एक बड़े मजे का सवाल अभी कुछ अर्से पहले मुझसे एक सैट की क्लास में एक बच्चे ने पूछा था, तो वो सवाल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज समटाइम्स क्वेश्चंस आर रियली इंटरेस्टिंग एंड दे हेल्प अदर स्टूडेंट्स टू लर्न एज वेल. एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर एडजेक्टिव में और मॉडिफायर में क्या फर्क है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन माय ओपिनियन. देखो बेटा, देयर इज एन ओवरलैप बट देयर इज आल्सो डिफरेंस. एडजेक्टिव किसी भी नाउन को डिस्क्राइब कर सकता है. Adjective is a word that describes the qualities of any kind of noun. It can be a common noun, it can be a proper noun, it can be the subject of the sentence, it can be the object of the sentence as well. Adjective किसी को भी कर सकता है. And generally speaking, adjective one word होता है. जो modifier होता है उसमें और adjective में पहला फर्क तो ये है कि modifier is usually a phrase and adjective is usually one word. दूसरी चीज, modifier specifically targets the subject of the sentence, and adjectives, as I told you, can target any noun in the sentence. Okay, does that answer your question, sir? Yes, sir. Okay, perfect. Can you please share the previous slide? Sure, of course. Previous there are a couple of previous slides. कौन सी वाली बेटा? ये वाली? बिल्कुल पहले, बस ये वाली. अच्छा, ये वाली. Okay, ठीक है, ये वाली सही है. इसका अगर आप चाहें okay, तो you can note down the points here, no problem. Okay, but you need to remember these 3 points. Modifier हमेशा subject के बराबर में, अगर modifier subject के बराबर में ना हो तो वो misplaced modifier कहलाएगा. क्योंकि अभी जैसे आपने मुझसे सवाल पूछा था and I told you कि modifiers don't enhance the sentence, modifiers enhance specifically the subject, which is why they must be next to the subject. अगर हम modifier को object के बराबर में रख देंगे तो वो object को enhance करना शुरू कर देगा और sentence बहुत ambiguous हो जाएगा. Okay, so that's something that you need to keep in mind. It's very important. Third thing is, modifiers don't complete the sentence. So a sentence does not require a modifier for it to be complete. Can I move on? इस slide का काम हो गया? बेटा note down कर लिया? Yes, sir. बिल्कुल. Okay, perfect. Let's move on. Okay, I wrote something here as well.
a different grammatical construction of the same sentences as I told you. ये जो नीचे वाला sentence आपको नजर आ रहा है बेटा, इसमें क्या हो रहा है? इसमें ms हो रहा है इस sentence के अंदर. Okay? इस सेंटेंस के अंदर ms हो रहा है, मॉडिफायर पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है. अच्छा, एक मजे की बात नोटिस कीजिएगा, तमाम सेंटेंसेस के अंदर मॉडिफायर से पहले we see a comma here and modifier के बाद we see a comma here. These two commas are beta called bracketing commas. Okay, जैसे मैथ्स में ब्रैकेट डलता है ना, वैसे bracketing commas, BRACKETING. Okay, my writing looks horrible here, but bracketing commas. Okay, it's different. Okay, anyway, so bracketing commas होते हैं बेटा. What is a bracket? A bracket, like in mathematics, हम enclose करते हैं ना figures को, numbers को हम enclose करते हैं. उसी तरीके से modifier जब SM construction में होता है तो 99.9% of the times modifier से पहले comma लगता है और modifier के बाद comma लगता है, और इन दो commas को हम bracketing commas कहते हैं क्योंकि ये दो commas modifier को enclose करते हैं. तो पढ़ने वाले के लिए आसानी होती है, determine करने के लिए आसानी होती है. A reader finds it easy to identify where the modifier is, as you can see in both sentences. Okay, but this is 99.9% of the times. There are a few situations when the modifier is not set off by bracket and commas, and I will discuss them with you in a while. Okay, now let's look at these two examples. These two examples have already appeared in the SAT. We need to identify the errors like we have done already in the first rule. Remember, modifiers will distract you. You need to identify them and ignore them because you need to focus on the subject and make sure that the subject matches the verb. Okay, so the first sentence here says one-way tickets for domestic travel is often more expensive than round-trip fares. Okay, I want someone to tell me what the subject of the sentence is, what the verb of the sentence is, and what the modifier is as well. क्योंकि modifier भी है, ठीक है? याद रखिएगा, extra information about the subject. Someone wants to pitch in. कोई भी मुझे जवाब देना चाहे प्लीज. अगर आप लोग अनम्यूट कर सके अपने आप को. एनीवन? ओके, ज़ैद, या गो अहेड बच्चे. Sir, one way is the modifier. Beautiful, very good. Yes, and yes. Tickets is the subject. बेहतरीन. And is the verb. Shabash, very good, very good, very good. And as you can see, there is MS construction in the sentence. Modifier पहले आ रहा है, subject बाद में आ रहा है, which is acceptable. One way से distract नहीं होना हमें tickets पे focus करना है. अच्छा, मुझे एक और बच्चे ने भी जवाब टाइप करके बताया था, बिल्कुल सही बताया था बेटा. And हमें tickets पे focus करते हुए ये देखना है कि क्या tickets हमारे verb से match कर रहा है या नहीं कर रहा है. And you can see कि tickets जो है वो verb के साथ match नहीं कर रहा. Tickets is plural. The verb of the sentence is singular, and the correction, I mean, the error of the sentence would most definitely be is, because it's singular, not matching with the subject. We need to convert it to are. Okay, so अगर यहाँ इसकी जगह are लिखा होता तो हमारा जुमला correct होता on the basis of the subject being tickets. Clear हो गई बात? Straightforward sentence है, ठीक है? So what about then? Yeah, then तो बेटा comparison हो रहा है ना. देखो, the sentence says one way tickets for domestic travel are, अगर हम यहाँ इसकी जगह are लिख दें, are more expensive than, so we are basically comparing. The word than is being used as a comparison between one-way tickets and two-way tickets. Basically, round fares are two-way tickets, right? So than is not a, what you call it, a verb here. It's basically a preposition being used as a comparison between one-way tickets and two-way tickets. Okay, let's look at the second sentence. Donations to the church-sponsored orphanage is up by 50% over the last year. Subject क्या है? Modifier क्या है? Verb क्या है? Anyone? Sir, orphanage is the subject and church-sponsored is, I think, the modifier. You're right. Perfect. Church sponsored is the modifier, orphanage is the subject. आप फिर देख सकते हैं subject और modifier एक दूसरे से बिल्कुल बराबर में है. Is my verb, as you can see, and since orphanage is singular, by the way, this is a situation where there are multiple subjects. Okay, you need to understand that. As I told you in our previous lecture last week as well,
हमने ये बात की थी कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, मिनिमम एक सब्जेक्ट चाहिए, मिनिमम एक वर्ब चाहिए, बट लेट मी राइट दिस एज S1 and S2. कीप दिस इन माइंड. Donations to the church sponsored orphanage. Okay, so we have one subject here, but at the same time we have a subject here. This is our primary subject. How do we know that this is our primary subject, beta? Because याद रखिएगा, verb से ये मेरा is eliminate हो रहा है, verb ये रहा, क्या चीज up हुई है by 50%? याद रखिएगा, गोल्डन रूल जो है ना वो चेंज नहीं होगा. गोल्डन रूल ये है कि आपको अपने वर्ब को देखते हुए ये देखना है कि कौन सा नाउन उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है. 50% से कोई चीज इंक्रीज हुई है. क्या चीज इंक्रीज हुई है बेटा? डोनेशंस इंक्रीज हुए हैं. अच्छा, डोनेशंस टू द चर्च स्पॉन्सर्ड ऑर्फनेज, ये जो फ्रेज है ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि डोनेशंस बहुत किस्म की होती हैं. कभी कभार डोनेशंस होती हैं for a particular hospital, sometimes there are donations to religious organizations, sometimes there are donations to whatever, something like philanthropic organizations like ईदी वगैरह. तो यहाँ बताया जा रहा है चर्च स्पॉन्सर्ड ऑर्फनेज है. डोनेशंस हमारा सब्जेक्ट है. डोनेशंस एज यू कैन सी लाइन से मिट गया है, एस लगा हुआ है, तो दिस इज अ प्लूरल. हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर है, एंड नेचुरली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नहीं हो रही, बिकॉज सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, वर्ब हमारा सिंगुलर है. इसकी जगह क्या लिखा होना चाहिए था? आर, बिकॉज 50% से जो चीज इंक्रीज हुई है वो है डोनेशन. सो हमें प्राइमरी फोकस जो है वो करना है लव्स डोनेशंस पे. टू द चर्च स्पॉन्सर्ड, ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज गिविंग अस एक्स्ट्रा डिटेल रिगार्डिंग डोनेशंस. Does that make sense? Do you guys get it? Okay. अच्छा, ये point जो मैंने last में लिखा है बेटा, this is a very important point. Please keep this in mind. Remember, subject verb agreement पे focus करना है, not modifier verb agreement. तो ये मत सोचिएगा कि modifier को आपको verb से agree करा लेना है. You have to make sure that your subject agrees with the verb of the sentence, because we're talking about subject verb agreement specifically. Okay, now basically I want to cover rule number 3, which is subject verb agreement when the subject and verb are separate, when the subject seems plural. I need to cover our third situation as well, because I am planning to keep a quiz. I'm planning to keep a quiz as soon as we are done with the 3 rules regarding subject verb agreement. एक था subject verb agreement when the subject follows the verb. आज हम कर चुके हैं already rule number 2 when the subject and verb are separated. Third situation करनी है बेटा, जिसको कहते हैं subject verb agreement when the subject seems plural. Okay, once we're done with these 3, I'll give you a tiny little test. Don't get scared, don't get bogged down by that. 25 questions होंगे मेरे ख्याल में, and it's just for your own practice. तो इंशाल्लाह वो टेस्ट होगा जैसे ही हमारे ये 3 रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं. तो इन रूल नंबर 3 as well, we'll focus on subject verb agreement when the subject seems plural. Now I want someone to tell me what this word means. Loves seems का क्या मतलब है? Anyone? सर दिखे. हाँ, दिखे. appears to be, लगता है. सही है. seems is something जो कि पहली नजर में आपको बजाहिर ऐसा दिखता है. ठीक है, जरूरी नहीं है वैसा हो. ऐसा हो सकता है कि जो आपको लग रहा हो पहली नजर में वो सच हो, लेकिन इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि जो आपको पहली नजर में लग रहा हो वो बिल्कुल ना हो. Like for example, when you go to the Middle East, you see the police officers, जिनको हम शुरते कहते हैं अरबी में. हम शुरतों को देखते हैं लग्जरी कार्स में. हमारे यहाँ पुलिस वाले तो कोरोला में घूम रहे होते हैं, वहां पे जो पुलिस वाले हैं वो लग्जरी कार्स में घूम रहे होते हैं. तो पहली दफा देखने में इंप्रेशन आपको ऐसा पड़ता है कि वाओ, ये लोग कितने डेवलप्ड होंगे, कितने रिच होंगे. लेकिन दैट इज बेसिकली जस्ट materialistic दिखावा. In reality, their economy is crumbling by the day. So there are a lot of things that appear to be like a particular thing, and they in reality are a different thing. There are a lot of movies जिनका आप ट्रेलर्स देखते हो and you're like, wow, this movie is going to be amazing. ट्रेलर से लगता है कि बेहतरीन होगी मूवी. आप मूवी देखने जाते हो, मेरे साथ बहुत दफा हो चुका है, and it's a complete waste of 2 hours of my life. Okay, because it was horrible. तो बुक्स के बारे में कहा जाता है never judge a book by its cover. एक दोस्त आपने बताया आपको शुरू में वो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था. With time you found that person very interesting. Vice versa भी हो सकता है. आपने एक दोस्त बनाया, आपको शुरू में अच्छा लग रहा था. With time you found out that person was not as he seemed to be. तो love seems का मतलब है बज़ाहिर दिखे. ठीक है, यहाँ पे
इस रूल में we're basically talking about situations जहां आपका सब्जेक्ट आपको प्लूरल लगेगा, it will appear to be plural. ठीक है? Now it's your challenge, it's your responsibility to ensure whether it is plural or not. अगर वो प्लूरल दिखता है और प्लूरल है भी तो फिर तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप एक काम करें, उसको प्लूरल वर्ब से मैच करा दें. प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है जहां आपका सब्जेक्ट प्लूरल लग रहा हो, इन रियलिटी वो सिंगुलर हो और आप जल्दबाजी का शिकार हो के, बिकॉज रिमेंबर टाइम इज वेरी एसेंशियल, यू हैव टू फोकस ऑन टाइम. 48 सेकंड्स पर क्वेश्चन हमने पिछले हफ्ते बात की थी. शुरू में आपको शायद 1.5 या 2 मिनट लगे पर क्वेश्चन, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू हैव टू मिनिमाइज दैट time spent on every question so that you can nail every question, right? So you do not have to get carried away with how it looks. Now in rule number 2 we focused on modifiers. In rule number 3 we have to focus on fake compounds. Okay, that's our topic of rule number 3, fake compounds. Now the word fake tells us a lot about those compounds. ये ऐसे phrases होते हैं, question पूछा जाता है कि sir what are fake compounds, and I understand A level students asking me this question because you know A levels में usually grammar bits and pieces में rules and definitions के हिसाब से नहीं पढ़ाई जाती, but it's a requirement of SAT, so I have to go over that with you. Fake compounds लफ्ज fake से ही पता चल रहा है कि ये आपको धोखा देंगे, आपको फील कराएंगे जो सच नहीं है. चाहिए they will mislead you, they will make you feel something that is not true. I've given you 6 examples of fake compounds. वैसे they are even more. I'll give you those other examples with the passage of time, but I've given you 6 examples, and as you can see I've drawn a line after 3. Okay, so the first 3 are written in a separate way and the next 3 are written in a different way. The first 3 are written in one piece, ये बात ज़हन में रखिएगा. As well as, in addition to, along with. ये 3 examples हैं fake compounds की, और ये one piece fake compounds कहलाते हैं because इनको एक साथ लिखा जाता है. As you can see, as well as एक साथ लिखा गया है, in addition to एक साथ लिखा गया है, along with एक साथ लिखा गया है. ठीक है? अच्छा, 4, 5 and 6 अगर आप देखें तो 4, 5 and 6 2 pieces में लिखे गए. either x और y लिखा जाता है, neither x nor y लिखा जाता है, not only x but also y लिखा जाता है. मतलब basically 4, 5 and 6 को अगर आप देखें तो they are written in 2 different parts. इनके 2 parts हैं. तो first 3 जो fake compounds हैं they are called one piece fake compounds, and 4, 5 and 6 जो हैं they are called 2 piece fake compounds. And the reason why I've drawn a line in between is because they are treated separately. So you need to pay attention now. They are treated separately. ऐसा नहीं है कि एक तरीकेकार है और सारे 6 के 6 के ऊपर एक ही तरीकेकार अप्लाई होगा. वन पीस को सेपरेटली ट्रीट करेंगे, 2 पीस को सेपरेटली ट्रीट करेंगे. अब चैलेंज देखिएगा मैंने क्या लिखा है. The challenge is that you have to check the primary subject while selecting the verb. Verbs must always be chosen on the basis of the primary subject and never on the basis of the secondary subject. Now question is, what is the primary subject, what is the secondary subject? Hold your horses. इस सवाल का जवाब मैं खुद ही आपको दे दूंगा. Just hold for a minute or two. I'll tell you what a primary subject is and what a secondary subject is. Ab, let's talk about the first situation. And mind you, when we're talking about the first situation, what do I mean? With the first situation, I'm talking about ye 3. I'm talking about these 3. Okay, one piece fake compounds. तो हम इसको one piece fake compounds भी लिख सकते हैं. First situation को कहा जा सकता है one piece fake compounds. Okay, so I can write it as one piece fake compounds. अच्छा, अब देखिएगा, as well as लिखा है, in addition to लिखा है, along with लिखा है, because these are the 3 examples we just discussed. As well as से पहले कुछ लिखा होगा सेंटेंस में, as well as के बाद भी कुछ लिखा होगा सेंटेंस में. In addition to से पहले कुछ लिखा होगा सेंटेंस में, in addition to के बाद कुछ लिखा होगा सेंटेंस में. Along with से पहले कुछ लिखा होगा, along with के बाद कुछ लिखा होगा. अब आपको क्या करना है? आपको जब भी अपने सेंटेंस में फेक कंपाउंड नजर आए, सबसे पहले उसको अंडरलाइन करके लिख दें FC. FC stands for fake compound, for your own convenience. शुरू में ये करना पड़ेगा, वक्त के साथ साथ आदत हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. शुरू में जैसे ही आपको अपने सेंटेंस में कोई भी फेक कंपाउंड नजर आए, अलर्ट हो जाइएगा.
और ये याद रखिएगा कि ये एक फेक कंपाउंड है और ये मुझे ऐसा महसूस कराएगा कि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन मुझे धोखे का शिकार नहीं होना, मुझे जल्दबाजी का शिकार नहीं होना। मुझे चेक करना है कि जो चीज प्लूरल लग रही है वो दर हकीकत प्लूरल है या सिंगुलर है, और उस बुनियाद पे, उस एनालिसिस की बुनियाद पे, उस एवेल्युएशन की बुनियाद पे मुझे अपने वर्ब को सिलेक्ट करना है। तो आपने एज वेल एज देखा, आपने इन एडिशन टू देखा, अलोंग विद देखा, इन तीनों में से कोई भी एक आएगा आपके सेंटेंस में, आपको अलर्ट हो जाना है। अब देखिएगा, एज वेल एज से या इन एडिशन टू या अलोंग विद से, किस्सा मुख्तसर, फेक कंपाउंड से जो पहले नाउन आता है वो नाउन आपका प्राइमरी सब्जेक्ट होता है, और फेक कंपाउंड के बाद जो नाउन आता है वो नाउन आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट होता है। आई रिपीट माई सेल्फ, जुमले में फेक कंपाउंड है, फर्स्ट सिचुएशन की बात हो रही है। फेक कंपाउंड से पहले जो नाउन आएगा वो प्राइमरी सब्जेक्ट है, फेक कंपाउंड के बाद जो नाउन आएगा वो सेकेंडरी सब्जेक्ट है। आपको अपने प्राइमरी सब्जेक्ट को देखना है फॉर वर्ब सिलेक्शन, और प्राइमरी सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर सिलेक्ट करेंगे, प्राइमरी सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आप वर्ब भी प्लूरल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, I'll give you a couple of examples and then we'll talk about it. Okay, so for now what I told you is whenever you see a fake compound, I'm talking about the first situation. What is the first situation? फर्स्ट सिचुएशन में हम वन पीस फेक कंपाउंड्स की बात करें, उन फेक कंपाउंड्स की बात करें जो कि एक टुकड़े में लिखे जाते हैं, एक हिस्से में लिखे जाते हैं, जैसे एज वेल एज एक साथ लिखा जाता है, इन एडिशन टू, अलोंग विद। जैसे ही आपको इस तरह के फेक कंपाउंड्स नजर आए, यू शुड बी अलर्ट, और इन फेक कंपाउंड से पहले आने वाला जो नाउन होगा वो आपका प्राइमरी सब्जेक्ट होगा, इनके बाद जो आ रहा होगा जैसे यहाँ मार्क लिखा हुआ है वो सेकेंडरी सब्जेक्ट होगा, और हम अपने प्राइमरी सब्जेक्ट को देखेंगे while selecting the verb. Okay, so let me give you a couple of examples and then we'll talk about it. The first example I have is, okay, listen to this sentence. I'll give it to you verbally. The maths teacher along with, as you can see, along with is a fake compound. The math teacher along with his 50 students dash going to the park. Is going to the park या are going to the park? क्या होगा? Is. The math teacher, yeah, it has to be is. अब मजे की बात यह है कि जुमले में 51 लोगों की बात हो रही है, 50 बच्चे हैं और एक मैथ का टीचर है, लेकिन along with से पहले, फेक कंपाउंड से पहले जो नाउन आ रहा है वो मैथ टीचर है, और वो हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट होगा, और उसकी बुनियाद पे हम वर्ब को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, मजे की बात देखिएगा, अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं और मैं कहूं द 50 स्टूडेंट्स along with their math teacher, तो फिर क्या आएगा? Are. ब्यूटिफुल, यस, इट हैज टू बी आर। अब मजे की बात ये, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, वो कहते हैं सर पहली सिचुएशन में इज आ रहा है, दूसरी सिचुएशन में आर आ रहा है, जुमले का तो मतलब सेम है। एक्चुअली जुमले का मतलब करीब है, सिमिलर है, बट सेम नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस टू सेंटेंसेस, अ स्लाइट डिफरेंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? पहले जुमले में मैथ टीचर पे प्राइमरी फोकस था, बच्चे उनके साथ एडिशनल चल रहे थे, the math teacher along with his 50 students. So that's showing us कि मैथ टीचर के ऊपर मेजर फोकस है, बच्चे इजाफी आ रहे हैं, सही है, वो कॉम्प्लीमेंट्री चल रहे हैं। अगर मैं दूसरी सिचुएशन इस्तेमाल करूं 50 स्टूडेंट्स along with मैथ टीचर, तो जुमले का मतलब ये बन रहा है कि बच्चे हैं मेजर फोकस, हमारा मैथ टीचर सिर्फ सहारे के तौर पे चल रहे हैं, या शायद सुपरविजन के लिए आए हैं, या जो भी है, सही है। प्राइमरी फोकस हमारा उस पे होगा जो प्राइमरी सब्जेक्ट होगा। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस इज वन सिचुएशन इन व्हिच यू नॉट ओनली हैव टू लुक एट द meaning of the sentence, but you also have to look at the construction of the sentence, and you have to ensure that the noun coming before the fake compound is identified as the primary subject, and that is the criteria of selecting the verb correctly in the sentence. Okay, now I'll tell you situation number 2, the second situation. जैसे मैंने आपको क्या बताया, फेक कंपाउंड जो है वो दो टुकड़ों में लिखे जाएंगे। सेकंड सिचुएशन में फेक कंपाउंड्स दो हिस्सों में लिखे जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहां मैंने एक कॉलम बनाया है फर्स्ट का और एक कॉलम बनाया है सेकंड का, और आप जानते हैं कि ईदर और इज वन फेक कंपाउंड, इट्स रिटन एज अ पेयर, neither nor is another fake compound, not only but also is another fake compound, and these fake compounds are written in pairs. either आएगा तो साथ कॉम्प्लीमेंट्री, और आएगा लाजमी, नीदर आएगा तो नॉर आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा। अब सुनिएगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, एंड इट्स डिफरेंट, द वे यू ट्रीट सेकंड सिचुएशन फेक कंपाउंड्स इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट सिचुएशन। क्या करना है, जैसे ही आपको सेकंड सिचुएशन फेक कंपाउंड नजर आए जिसमें दो पीसेस होंगे, जिसमें दो पार्ट्स होंगे,
तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लेना है. तो फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी सेंटेंस में ईदर और नजर आए, तो व्हाट यू गॉट टू डू इज यू नीड टू अंडरलाइन ईदर एंड राइट फर्स्ट ऑन टॉप ऑफ इट. Then you need to underline or and write second on top of it. Then this is where the tricky part starts. Second part के बाद जो noun आएगा, अच्छा याद रखिएगा जितनी बातें मैं noun के हवाले से कर रहा हूं यही बातें pronoun पे भी अप्लाई होती हैं, क्योंकि pronoun क्या होता है, noun की replacement होता है pronoun. So अगर second part के बाद noun आया है या pronoun आया है, तो वो second part के बाद आने वाला noun या pronoun आपका primary subject बन जाएगा, और फर्स्ट पार्ट के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट बन जाएगा एज इट्स रिटन ओवर हियर. उल्टा है, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं. फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है. आप अपने फर्स्ट पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर इधर लिखा है और लिखा है, आप अपने फर्स्ट पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड पार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे. सेकंड पार्ट के बाद जो नाउन लिखा हुआ है या प्रोनाउन जो लिखा हुआ है वो आपका प्राइमरी सब्जेक्ट बन जाएगा, और फर्स्ट पार्ट के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है वो आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट बन जाएगा. कहानी एग्जैक्टली वही है. आप अपने प्राइमरी सब्जेक्ट को देखेंगे वर्ब को सिलेक्ट करते हुए. यू हैव टू फोकस ऑन योर प्राइमरी सब्जेक्ट व्हाइल सिलेक्टिंग द वर्ब ऑलवेज, बट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी सब्जेक्ट इज डिफरेंट इन बोथ सिचुएशंस. पहली सिचुएशन के अंदर जहां वन पीस फेक कंपाउंड्स थे, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने फेक कंपाउंड से पहले वाले नाउन को प्राइमरी सब्जेक्ट के तौर पे आइडेंटिफाई किया. इस सिचुएशन में क्योंकि हमारे पास दो पीसेस में फेक कंपाउंड्स लिखे हैं, यहां हमें सेकंड पीस के बाद जो नाउन आ रहा होगा उसको कंसीडर करना पड़ेगा एज आवर प्राइमरी सब्जेक्ट. सो फार सो गुड. एनी कंफ्यूजन्स? सवाल तो बनता है, अभी तो सवाल पूछना जरूरी है मेरे ख्याल में. आई थिंक सम क्वेश्चंस वुड बी यू नो. हाँ ठीक है, पूछो बेटा. या सेकेंडरी सब्जेक्ट को क्यों नहीं देख सकते? हाँ, सवाल बड़ा अच्छा है. सेकेंडरी सब्जेक्ट को क्यों नहीं देख सकते? ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा. सेकेंडरी सब्जेक्ट को इसलिए नहीं देखते क्योंकि लव सेकेंडरी बताता है इट इज लेस इंपॉर्टेंट. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ये बच्चा आमतौर पे बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर सेकेंडरी सब्जेक्ट को क्यों नहीं देखा आपने? बिकॉज बेटा द वर्ड प्राइमरी tells us it's more important, and secondary by definition tells us it's less important. Let me give you an example. In order to be a good student, you have to do three things. Primarily, you need to study well. Secondly, you need to eat well. And thirdly, you need to sleep well. ठीक है? फिर I give you a reading comprehension question. What do you need to do? What's the most important thing to do in order to be a good student? तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे स्टडी वेल. ठीक है, आप कहेंगे स्टडी वेल बिकॉज प्राइमरली यू नीड टू स्टडी वेल. मैं कह रहा हूं, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, बेटा योर एग्जाम इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, प्राइमरली यू मस्ट स्टडी, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी. प्राइमरली यू मस्ट स्टडी, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी. तो द वर्ड प्राइमरली या प्राइमरी टेल्स अस इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. सही है, एंड एवरीथिंग एल्स कम्स लेटर. सो ऑलवेज फोकस ऑन द प्राइमरी सब्जेक्ट व्हाइल यू आर सिलेक्टिंग द वर्ब of the sentence. Okay, especially in rule number 3. Now I've written a couple of examples here. I think they'd be beneficial for each and every one of you. जी बेटा. Sir, in the end they both are subject ना. जैसे आप ये भी बोले थे primarily you have to eat, so you have to study and then you have to eat. So yeah, in the end they both are subject. Yes, at the end of the day they are both subjects, but there's a difference between a subject written with a conjunction and a subject written with a fake compound. This is another good question. ये जरा सुनिएगा सवाल क्या पूछा गया और इसका जवाब क्या है. बहुत मजेदार सवाल है, सुने. अगर मैं एक सब्जेक्ट लिख रहा हूं and I mark it as X, और फिर मैं लिख रहा हूं and, और उसके बाद मैं लिख रहा हूं Y, तो यहां चूंकि and एक कंजंक्शन है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट है, ये भी हमारा सब्जेक्ट है, और दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये एक कंजंक्शन है जो कि दोनों को इक्वल हैसियत दे रहा है. ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मेरे पास एक सब्जेक्ट है X और बीच में फेक कंपाउंड लिखा हुआ है और फिर एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है Y, तो दैट टेल्स अस, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ फेक कंपाउंड इट इज, इफ इट्स अ वन पीस फेक कंपाउंड, ये मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट होगा, ये सेकेंडरी होगा. इफ इट्स अ टू पीस फेक कंपाउंड, तो जो फेक कंपाउंड सेकेंड पार्ट के बाद जो सब्जेक्ट जो नाउन आएगा वो मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट होगा. तो देयर इज अ डिफरेंस in how you treat sentences, whether on the basis of whether a fake compound is used in those sentences or a normal simple conjunction is used in the sentences.
अगर सेंटेंस में कंजंक्शन लिखा हुआ है, लाइक एंड लिखा हुआ है, मोर ओवर लिखा हुआ है, ऑल्सो लिखा हुआ है, समथिंग लाइक दैट, तो फिर बेटा दोनों की इक्वल हैसियत होगी. इफ आई से समथिंग लाइक जैक एंड जॉन आर वॉकिंग इन द पार्क, तो यहाँ जैक एंड जॉन इक्वल इंपॉर्टेंस है. अगर मैं कहूं जैक इज वॉकिंग इन द पार्क अलोंग विद जॉन, ठीक है, तो जैक इज वॉकिंग इन द पार्क अलोंग विद जॉन, तो यहाँ पे जैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जॉन जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको सहारा दे रहा है. That's how you have to treat the sentence. Whenever you have a fake compound, you need to understand that the secondary subject is just coming as addition. मिसाल अगर मैं आपको दूं, बेटा मेरे घर पे दावत है, I want you to attend the दावत along with your family. ठीक है, जैसे मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, एक जनरल मिसाल है, मेरे घर पे दावत है, I want you to attend that दावत along with your family. तो इसमें हो क्या रहा है, प्राइमरी फोकस मेरा आप पे है, बिकॉज मैं आपको जानता हूँ, मैं आपकी फैमिली को नहीं जानता. रिस्पेक्ट जरूर करता हूं बिकॉज वो आपसे एसोसिएटेड है, आपसे रिलेटेड है. कई दफा ऐसा होता है, इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे अपनी जिंदगी में, आप यूनिवर्सिटी लाइफ में जाएंगे, आप इंशाल्लाह अपनी प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल होंगे, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सिर्फ आप जानते होंगे और दावत आपको मिलेगी, लेकिन चूंकि वो आपकी इज्जत करते हैं तो वो आपके वालिदैन, आपकी बीवी बच्चे, आपके बहन भाई सबको साथ एसोसिएट करके सबको मदू करते हैं, सबको बुलाते हैं. तो वाई? बिकॉज प्राइमरी कॉन्टैक्ट आप हैं, बाकी सारे सिर्फ और सिर्फ सहारा दे रहे हैं आपको. दे आर कमिंग कॉम्प्लीमेंट्री विद यू. द प्राइमरी फोकस इज ऑन यू. यू गेट इट? Yes, sir. आपने या along with your family, तो वो अच्छा सही है, सेकंड वाला प्राइमरी सब्जेक्ट है. हाँ नहीं. हाँ, नहीं 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 नहीं. along with, बेटा देखो, along with मैंने कहा ना, along with is the first situation. along with is the first situation. अगर मैं कह रहा हूं I want to invite you to my दावत along with your family, तो यहां पे you आ रहा है, यहां आ रहा है your family, right? I want to invite you along with your family. तो हो क्या रहा है, along with से पहले आ रहा है you, तो आप हो गए प्राइमरी सब्जेक्ट, और along with के बाद आ रहा है your family, तो ये हो गया सेकेंडरी सब्जेक्ट. मैं आपको देखूंगा और आपके मुताबिक अपने वर्ब को सिलेक्ट करूंगा, बिकॉज आप पे मेरा प्राइमरी फोकस है. Get it? Along with is the first situation, it's not the second situation. Okay, now let's talk about a couple of examples. इंशाल्लाह इससे काफी ज्यादा आपकी क्लैरिफिकेशन होगी. पहली सिचुएशन देखिएगा, पहला एग्जांपल है, either the manager or one of his coaches usually remove a pitcher from the mound. Okay, so इसमें आप देख सकते हैं fake compound है, either or, and you can see this is the second case of fake compounds जिसमें 2 piece में लिखे जाते हैं fake compounds. ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले let me just try to make this a little clearer. Okay, let me just write this a little clearly. Okay, either जो है वो हमारा first हो गया और जो है वो हमारा second हो गया, मतलब first part and second part. याद रखिएगा second situation of the fake compounds में हमें क्या करना होता है कि second part के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वो मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट होगा, और फर्स्ट पार्ट के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है वो मेरा सेकेंडरी सब्जेक्ट होगा. सो इन दिस सिचुएशन ये जो है वन ऑफ हिज कोचेस, ये मेरा प्राइमरी सब्जेक्ट है, और मैनेजर जो है वो मेरा सेकेंडरी सब्जेक्ट है. अब मैं अपने प्राइमरी सब्जेक्ट को देखूंगा और उसके हिसाब से अपने वर्ब को सिलेक्ट करूंगा. तो इफ यू लुक एट वन ऑफ हिज कोचेस, what do you think? One of his coaches singular है या plural है? Singular. Yes, it is singular. Coaches की बात नहीं हो रही, one of his coaches की बात हो रही है, बहुत सारों में से एक. तो चूंकि one of his coaches is singular, हमारा verb भी singular होना चाहिए. ये बात याद रखिएगा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सेकेंडरी सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इन्फिनिट हो भले, it does not make a difference. You only have to focus on your primary subject, but the way you identify your primary subject is different in both situations. One piece में अलग तरीके से करना है, 2 piece में अलग तरीके से करना है, लेकिन पॉइंट ये है कि आप अपने प्राइमरी सब्जेक्ट पे फोकस करते हुए अपने वर्ब को सिलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे जब वन ऑफ हिज कोचेस हमारा सिंगुलर हो गया तो बेटा वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. अब ये जरा मुझे बताओ कि रिमूव सिंगुलर है प्लूरल है? Singular. Singular. No, it is not singular, guys. भूल गए, लेक्चर रिवाइज करने की जरूरत है.
ये देखो क्या लिखा हुआ है नीचे, ये क्या लिखा हुआ है बॉक्स में, क्या लिखा हुआ है? जब नाउन के आगे एस या ईएस लगता है तो वो प्लूरल बनता है, वर्ब के आगे एस या ईएस लगने पर वो सिंगुलर बनता है। वर्ब के आगे एस या ईएस लगाओगे तो वो सिंगुलर होगा। लव्स रिमूव्स सिंगुलर है, रिमूव सिंगुलर है, और अगर मैं एस हटा दूंगा तो रिमूव प्लूरल हो जाएगा। देखो कभी भी अगर याद करना हो ना, ये रट्टा लगाने की बात नहीं है, जब भी याद करना हो एक छोटा सा जुमला जहन में बना लिया करो। आप खुद सोचो, ही रिमूव्स अ लॉट ऑफ डस्ट या ही रिमूव अ लॉट ऑफ डस्ट? ही रिमूव्स अ लॉट ऑफ डस्ट होगा ना। ही के साथ हम एस वाला वर्ब लगाते हैं क्योंकि एस वाला वर्ब सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, एस वाला वर्ब सिंगुलर है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, ये ध्यान में रखिएगा। He talks a lot, they talk a lot. He speaks too much, they speak too much. He looks out of the window, they look out of the window. He waves his hand, they wave their hands. अब यहां हो क्या रहा है? जितने भी ही वाले जुमले हैं, नेचुरली ही इज सिंगुलर, जितने भी ही वाले जुमले हैं उसके अंदर मैं वर्ब के आगे एस या ईएस लगाता चला जा रहा हूं, क्योंकि ये बुनियादी उसूल है जो यहां भी मैंने लिख दिया है कि वर्ब के आगे एस या ईएस लगाएंगे तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी दे वाले जुमले हैं उसके अंदर मैं एस या ईएस नहीं लगा रहा, क्योंकि एस या ईएस लगाने पर वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं ही डज टू मच वर्क ऑन अ डेली बेसिस, तो ही के साथ मैं डज इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि बेटा डी ओ, लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन, डी ओ के आगे लगा ई एस, तो वो बन गया सिंगुलर। अगर मैं कहूंगा दे डज बोलूंगा, दे डज अ लॉट ऑफ वर्क, दे डज अ लॉट ऑफ वर्क, ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज दे इज प्लूरल एंड दे के साथ डू आना चाहिए। तो याद रखिएगा एस या ईएस जोड़ा जाता है। आई राइट दिस डाउन, आई स्क्रिबल इट हियर। वर्ब के आगे जब आप एस या ईएस लगाते हो, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, तो वो सिंगुलर हो जाता है, ये बात याद रखना। और उल्टा है नाउन का, याद रखना बड़ा आसान है। नाउन के आगे जब आप एस या ईएस लगाते हैं तो 99.9% ऑफ टाइम्स वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। जैसे बॉय का बॉयज है, बुक का बुक्स है, यू नो टीवी का टीवीज है, फोन का फोन्स है। 99.9 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस, लाइक चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता, मैन का मैन्स नहीं होता, वुमन का वुमन्स नहीं होता, सही है। पाकिस्तान में होता होगा, खैर अंग्रेजी में नहीं होता। तो पॉइंट इज कि यू नो यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट द जनरल परसेप्शन इज। सो यहाँ पे बेटा एरर है क्या? रिमूव, क्योंकि रिमूव एज यू कैन सी इज अ वर्ब व्हिच इज नॉट एंडिंग विद एन एस, व्हिच मेक्स इट अ प्लूरल वर्ब, and since my primary subject, one of his coaches, is a singular and my verb is a plural, there is no subject verb agreement, which is why C would be my answer. And how would we fix it? अगर correction की बात आए तो बेटा correction के अंदर बड़ा आसान है, इसकी जगह हमें removes लिख देना चाहिए था। Make sense? Clear हुआ? जी सर। Okay. Any questions, guys? ये बड़ा important सवाल है। Any questions? सर इसमें जो आपने प्राइमरी सब्जेक्ट बताया है वो आपने जी। बोला वन ऑफ हिज कोचेस है, कोचेस क्यों नहीं हो Yes. सकता प्राइमरी सब्जेक्ट? बिकॉज बेटा सिर्फ कोचेस की बात नहीं हो रही, कोचेस में से एक की बात हो रही है। जुमले का मतलब तो समझो, जुमला ये कह रहा है या तो मैनेजर या उसके कोचेस में से एक माउंट हटाते हैं पिक्चर पे से, सही है, ये बात हो रही है। तो अगर आप वन ऑफ हिज कोचेस की जगह सिर्फ कोचेस ले लेंगे तो आप तो जुमले का मतलब ही चेंज कर रहे हैं। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं वन ऑफ यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, और अगर आप वन ऑफ यू में से वन ऑफ इग्नोर करके कहते हैं यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो ये तो जुमले का मतलब ही चेंज हो रहा है ना। मैं कह रहा हूं कि 10 में से एक ने सवाल पूछा था, और अगर आप वन ऑफ यू में से वन ऑफ निकाल देते हैं और सिर्फ कहते हैं यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो दैट बेसिकली मींस एक ही है और उसी ने सवाल पूछा था। तो you do not have the right to change the meaning of the sentence, of course. You need to understand what the sentence is saying. तो बेटा याद रखिएगा one of his coaches, हम coaches की बात नहीं कर रहे, coaches में से एक की बात कर रहे हैं, which is a singular most definitely, which is why my verb must also be a singular rather than remove. It should be removes. Okay? अच्छा, second situation देखते हैं, second जुमला, auto exhaust in addition to industrial pollution are a cause of smog in Southern California. Okay, you can see this is the first situation of fake compounds.
ठीक है, इन एडिशन टू नजर आ रहा है मुझे अलर्ट हो जाना है, जैसे ही मुझे फेक कंपाउंड नजर आए मैं उसको अंडरलाइन करके FC लिख दूंगा आसानी से। और इन एडिशन टू से बिल्कुल पहले बेटा जो नाउन आ रहा होगा वो हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट होगा। इन एडिशन टू के बाद जो नाउन आ रहा होगा, जो कि इस केस में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, वो हमारा सेकेंडरी सब्जेक्ट होगा। आई लुक एट माई प्राइमरी सब्जेक्ट विच इज ऑटो एग्जॉस्ट, and on the basis of that I'll select my verb. So auto exhaust is a singular, my verb must be is. अब मजे की बात क्या है, बच्चे जब जुमला पढ़ते हैं और उनको इसकी समझ नहीं होती ना इन एडिशन टू की, तो वो कहते हैं ऑटो एग्जॉस्ट भी है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी है, दो चीजें हैं जो कि पोल्यूशन मतलब जो कि स्मॉग कॉज कर रही है सदर्न कैलिफोर्निया में, तो आर इज एक्सेप्टेबल, आर में कोई एरर नहीं है बेटा, बहुत बड़ा एरर है। इनफैक्ट आई थिंक यासिर आपने शायद थोड़ी देर पहले मुझसे ये सवाल पूछा था, जिसके जवाब में आपसे मैं ये कह रहा था कि अगर एक चीज लिखी हो और बीच में फेक कंपाउंड हो और फिर दूसरी चीज लिखी हुई हो, तो हमारा फोकस जो है वो प्राइमरी सब्जेक्ट पे होगा। लेकिन अगर एक चीज लिखी हुई हो और बीच में कंजंक्शन हो, मिसाल एंड, और फिर दूसरी चीज लिखी हुई हो, तो हमारा फोकस दोनों पे होगा, because there is a difference between a conjunction and a fake compound. You don't treat them similarly. जब कंजंक्शन इस्तेमाल होता है तो कंजंक्शन से पहले कंजंक्शन के बाद दोनों चीजों की इक्वल हैसियत है। जैक एंड जॉन आर वॉकिंग इन द पार्क, सही है, जैक एंड जॉन आर ब्रदर्स, बोथ ऑफ देम आर ब्रदर्स, दोनों पे फोकस है, ठीक है। मैं अगर कह रहा हूं जैक along with जॉन, तो यहां नेचुरली फोकस मेरा जैक पे आ गया प्राइमरी, एंड along with जॉन मुझे ये बता रहा है कि जॉन सिर्फ और सिर्फ सहारे के तौर पे, सपोर्ट के तौर पे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा सिंपल हो गया, इन एडिशन टू फेक कंपाउंड है। पहले हम देखेंगे ऑटो एग्जॉस्ट को, चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए हमारा जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, इट कैन नॉट बी आर। क्लियर हो गया? अच्छा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, हमारे पास अजान हो रही है, आई एम गोना स्टॉप एंड देन आई विल डू आवर लास्ट एग्जांपल एंड देन आई विल रैप अप। Okay beta, let's resume. Last question है यहाँ, it is said that neither poor weather nor poor health keep a postman from making his rounds, ठीक है।
तो यहाँ पे as you can see there are two piece fake compounds. I want someone to solve this question for me please. Anyone? उस्मान खान, आपने अभी तो कुछ नहीं बोला बेटा, थोड़ा कंट्रीब्यूट करें क्लास में, अनम्यूट करें, मुझे जरा बताएं इसके फेक कंपाउंड के दो पार्ट्स क्या हैं और इस जुमले को कैसे ट्रीट करेंगे. उस्मान. यस सर. हाँ जी बताएं. सर इसके अंदर दो फेक कंपाउंड्स हैं, नीदर एंड नॉर. ठीक है, दो पार्ट्स हो गए इसके. ठीक है, वेरी गुड. इसको हम फर्स्ट कर देते हैं, इसको हम सेकंड कर देते हैं. अब कैसे पता चलेगा प्राइमरी सब्जेक्ट क्या है? सर जो दूसरा जो है ना आपका फेक कंपाउंड, उसके प्राइमरी वो आएगा. ठीक है, और वो कौन सा है यहाँ पे? हेल्थ. Okay, good. So here we have our primary subject. And what's our secondary subject here? Secondary subject must be, I think, poor. Weather. Yeah, poor weather. Yeah, आपका secondary subject हो गया. Now, you have to look at your primary subject and make sure whether the verb is agreeing with it or not. तो यहाँ हमारा verb नजर आ रहा है हमें keep, which is singular or plural? Sir, it's singular. No, I just told you. When we have a verb and we add an s or an es in front of it, it becomes a singular. A verb without an s or an es is a plural. Is a plural. Yes. He keeps his books very neatly. They keep their books. तो मैं he के साथ keeps लगाऊंगा and they के साथ keep लगाऊंगा, which is proof of the fact कि keep is plural. And here, since our primary subject was poor health, which was singular, and keep is a verb which is plural, they are not agreeing with each other, which is why our error must be C, right? And how would you fix that? By adding an s and making it keeps. Agar jumla hota, it is said that neither poor weather nor poor health keeps a postman, to wo correct hota. ठीक है? So what you need to understand is always if there are two piece fake compounds, you have to focus on the noun which is coming after the second piece and identify that as your primary subject. If there is a one piece fake compound, you only have to look at the primary subject which appears to be coming before the fake compound. And uski bunyad pe you always have to make sure that your verb is agreeing. Okay, makes sense? Any questions, anyone? Anyone, any questions? All good? Okay, so what I'm going to do now is, since we are done with the three types of sentence correction questions which are related to subject-verb agreement, I'm going to schedule a test. Okay, it's going to have, as I told you, 20-25 questions, maximum 30 questions. I'll talk to Sir Imran and I'll tell you exactly when that test is going to be scheduled. He'll inform you, inshallah, on the group. And before then, if you have any questions regarding the lecture that you've received so far, then you can definitely message me and inshallah I'll get back to you. But please do take that test. Even if you think that your preparation is not at par, do not shy away from tests, because that's the only way you can prepare. Please test zarur dena, skip nahi karna. Bhale sare sawal galat ho aapke, it doesn't matter to me. What matters is when I explain those questions to you, during the live session, you must understand what went wrong and how do you have to fix that. ठीक है बेटा? So I'm done with today's session. Let's move on. आप अपनी मैथ्स की क्लास लीजिएगा and inshallah we'll see each other soon. Okay? Thank you so much for staying online. Thank you. उम्मीद है कि आपको 5-10 मिनट का गैप मिल गया होगा. अभी शायद आपकी इंग्लिश की क्लास एंड हुई होगी. आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रही है? काइंडली बेटा मुझे कंफर्म कर दें चैट पे. ठीक है भाई.
सुमेरा, इतने ही पार्टिसिपेंट्स थे, कोई लीव तो नहीं कर गया है? अगर वरना ग्रुप पे दोबारा आप मैसेज कर दीजिए ताकि रीज्वाइन कर लें बच्चे, क्योंकि शायद ये 5-7 मिनट क्लास आगे बढ़ी है तो। खैर बेटा, हमारा लास्ट क्लास का डिस्कशन बेटा ये था, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू की थी, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा हमने ये हमारा बेटा लास्ट क्लास का डिस्कशन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक पॉइंट क्या होता है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉइंट का नेचर क्या होता है, और किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। अब हम आगे बढ़ें, और अगली जो बात है वो बड़ी आसान सी है। अच्छा बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हुए या सेट की जो भी हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे होंगे, उनमें हम बेसिक आइडिया उस टॉपिक का और फॉर्मूले डिस्कस कर रहे होंगे। असल मामला तब आएगा समझने का, जब हम उन चीज़ों पर बेस करते हुए सवालात को डिस्कस कर रहे होंगे। तो सिर्फ फॉर्मूलों को सोचकर ये मत सोचने लग जाइएगा कि यार ये तो बड़ा आसान है तो यूँ हो जाएगा। जब उस पर बेस करते हुए सवाल देखेंगे तो हमें उस टॉपिक की असल कहानी का अंदाजा होगा। अब बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। दो पॉइंट्स को अगर, एक का नाम रख दिया हमने ए और एक का नाम रख दिया हमने बी, दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने एक को कह दिया एक्स वाई, इसको कह दिया एक्स वाई, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का अगर मैं कहता हूं एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, ठीक है, इसकी मुझे अगर लेंथ चाहिए। अच्छा, अब लाइन सेगमेंट की बात एक नई आ गई, तो ये ज़रा देखें। अगर कोई भी लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है तो हम उसको लाइन कहते हैं। दोनों एंड पॉइंट फिक्स्ड हो, यानी कि आगे मूव ना हो सकता हो, लेंथ फिक्स हो गई, तो हम ऐसी लाइन को कहते हैं लाइन सेगमेंट। एक एंड पॉइंट फिक्स्ड हो और एक जो है वो एक्सटेंड हो सकता हो, तो उसको हम कहते हैं रे। तो मैंने इसको लाइन सेगमेंट इसलिए कहा क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स है। अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस या इन दोनों पॉइंट से मिलकर बनने वाला लाइन सेगमेंट, ये देखिए मैंने ए बी के ऊपर बार लगाया है, मतलब ए बी मिलके क्या बना रहे हैं, एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया मॉड्यूलस, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ लाइन सेगमेंट। इसको मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो ये,
ये कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला है। आगे और भी आएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, उनका नेचर अलग अलग होगा। इसको अप्लाई भी करना सीख लेते हैं, यानी कि अगर क्वेश्चन लिखा हुआ हो कि भाई फाइंड द डिस्टेंस और 2 पॉइंट दिए हुए हों, तो हमने एक का नाम दे दिया ए का और दूसरा पॉइंट हो गया भाई बी। इसके एक मिनट बताइए क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, ये हो गया x2 और y2। ए बी अगर मालूम करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ फॉर्मूला यूज होगा। तो ये आ गया भाई 5 माइनस 3 का स्क्वायर और -1 -2 का स्क्वायर। अच्छा, अभी इस बात से बेफिक्र हो जाए तो कि ये तो लेंदी काम है, असल में आप सब सीधे पैरी मरता पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मेरा काम ये है कि मैं आपको हर बात से आगाह करूं। फिर मैं इसका तेज तरीका भी बता दूंगा और उससे क्या होगा, फौरन फौरन सवाल हो रहा होगा, लेकिन वो होगा तब जब ये सब आता हो। 4 + 9 इन अंडर रूट will end as √13। ये आ गई बेटा ए बी की वैल्यू। ठीक है, ये हमने बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई भी करना सीख लिया। अच्छा बेटा, एक बात मैं आप सब लोगों को भी बता रहा हूँ, अभी मैंने ई वालों को भी बताई। जितने भी बच्चे लेवल्स में होते हैं उन सब का जो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट हो जाता है उनकी स्टडीज़ का, वो ये होता है कि वो लिखते नहीं हैं। वो समझते हैं कि मोबाइल के स्क्रीनशॉट्स, लैपटॉप से प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन, इसके ज़रिए उनकी ज़िंदगी गुजर जाएगी और जब टेस्ट आएगा तो वो आराम से यूं चुटकी बजाएंगे, सवाल हो जाएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो जहन में है। जब सवाल आएंगे तो देखेंगे। तो ये आपकी भूल है बेटा। हमारा माइंड अब इस वक्त इतना बम्बार्ड किया जा रहा होता है इंफॉर्मेशन और नॉलेज से वाया सोशल मीडिया, कि हमारे जहन में ना हर चीज़ डिस्टॉर्शन का शिकार हुई हुई है, जिसकी वजह से जब हम पढ़ाई को रिकॉल करते हैं पेपर के टाइम पे, कि वो हम पेपर पे उसको रिप्रेजेंट कर सकें, वो नहीं हो पाती। तो लिखना है आपको अपने हर लेक्चर को, ये याद रखिएगा। अगर आप लिखेंगे नहीं तो यकीन जाने कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, फिर ये भी याद नहीं रहेगा कि क्या काम हुआ था क्या नहीं हुआ था। अच्छा, यूनिट ज़रूर लिख दीजिएगा भाई। मिड पॉइंट फार्मूले की बात हो रही है बेटा, ये देखिए।
सी एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीच में है। अगर मुझे अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने बेटा तो वो बराबर होंगे इस फॉर्मूले के जरिए बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मौजूद कोई से भी दो पॉइंट्स का अगर मिड पॉइंट निकालना है तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा। अच्छा भाई देखें, ये जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ रिकॉल हो रहा है कुछ लोगों को, और मैं बहुत आसान आसान सवाल भी करा रहा हूँ जिस पे यकीनन कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि यार ये तो हमें आता है। तो बेटा बात ये कि आप ही के दरम्यान कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं रख पाए होंगे। मेरा काम ये है कि मैं सबको बराबर के लेवल पर ले आऊँ, जिसके लिए मुझे हर बात बतानी ज़रूरी है। तो इसलिए आपको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये बात मैंने शुरू में ही बता दी थी कि कुछ चीज़ों में आप बोर होंगे क्योंकि वो आपको आती होंगी, और फिर सवालात जब शुरू होंगे तो आपको ज़रा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ये हमने लिख दिया कि भाई सी एक्स वाई बी द मिड पॉइंट। ये हो गया भाई x1 y1, ये हो गया x2 और y2। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं बेटा। लिख लें बेटा इसको भी। मिड पॉइंट फार्मूला।
लिख लिए बेटा? थोड़ा सा बेटा मुझे काइंडली रिस्पॉन्ड कर दें, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जी सर बिल्कुल लिख लिया। ठीक है। थैंक यू बेटा। अच्छा बेटा, अगला टॉपिक है ग्रेडियंट या स्लोप। अमूमन मुख्तलिफ किताबों में ग्रेडियंट और को या स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका फॉर्मूला मैं ये लिख रहा हूँ। लेकिन असल मसला ये आता है कि ग्रेडियंट या स्लोप होता क्या है। तो ज़रा इस बारे में सुने तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बना रही होती है, इस एंगल को हम कहते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, इस एंगल को हम कहते हैं इंक्लिनेशन। और जब हम इस एंगल का टेंजेंट निकालते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कहलाती है स्लोप। स्लोप इज बाय डेफिनेशन या ग्रेडियंट इज बाय डेफिनेशन टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, स्लोप या ग्रेडियंट इज बाय डेफिनेशन टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। और अगर मैं उन्हीं जैसे ये एक लाइन है, जैसे मैं चले ये भी बता देता हूँ आपको, थोड़ी सी अलग बात हो जाएगी बेटा, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा सा आपके समझाने के लिए आपको फायदा हो जाएगा। अलग बात यूँ हो जाएगी कि इसका टेस्ट में तो कोई काम नहीं है, लेकिन इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप कल को कोई आपसे पूछता है ये फार्मूला बना कैसे, हुआ क्या, तो आप उसको कम से कम बता सकते हैं भाई ये हुआ था। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। अच्छा भाई, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बेटा ये कितना डिस्टेंस है, तो ये कितना, यकीनन y1। ठीक है, मैं बेसिकली ये डिस्टेंस पूछ रहा हूँ, ये वाला। दिस इज नॉट x1, दिस इज y1, क्योंकि मैं आज क्या पूछ रहा हूँ, इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस, किसी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस किसके बराबर होता है, उस पॉइंट की y की वैल्यू के। और इसी तरह बेटा ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस
ये कितना हो गया y2, ठीक है। फिर अगर हम बात करें ये डिस्टेंस, तो ये हो गया x1 और ये डिस्टेंस हो गया x2। हम देखिएगा बेटा ज़रा, ये डिस्टेंस क्या है y1 और ये डिस्टेंस क्या है बेटा y2। ये डिस्टेंस क्या है x1, ये डिस्टेंस क्या है x2। अब अगर हम ये सोचें कि ये कितना होगा, तो ये यकीनन आप इतना समझ पा रहे होंगे कि ये होगा x2 माइनस x1, और ये कितना होगा y2 माइनस y1, ठीक है। अब अगर मैं एक ट्राइंगल यहाँ बना दूं, ट्राइंगल बन गया, तो ये कितनी लेंथ हो गई भाई, ये हो गई x2 माइनस x1, और ये कितनी लेंथ हो गई बेटा y2 माइनस y1। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस हो गया। वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा आपका बना था, वो बना ही पाइथागोरस थ्योरम के जरिए था, कि अगर मैं इसी में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं, तो क्या होगा। पाइथागोरस थ्योरम बाय डेफिनेशन क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हाइपोटेनस बेटा इधर क्या है, चाहे तो कर लीजिएगा, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है इसको कॉपी करने की। मकसद मेरा ये था कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि ये सब है क्या। देखिए हाइपोटेनस क्या है, ए बी, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो आप जब अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि अंडर रूट अप्लाई करने पर बेटा ये डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा। देखिए यही तो है डिस्टेंस फार्मूला। तो ये डिस्टेंस फार्मूला क्यों बना, कैसे बना, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूले की बात हो गई। फिर अब अगर मैं यहीं पर ही एक एंगल मार्क कर दूं और आपसे कहूं कि भाई टेन थीटा क्या निकलेगा, तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा is perpendicular over base. In this case, tan theta will be equal to what? y2 minus y1। ये आ जाएगा बेटा जवाब। इसीलिए ये देखें टेन थीटा फिर इसके बराबर लिखा हुआ। तो अब किसी भी, फॉर एग्जांपल यही दो पॉइंट हैं जो ऊपर मौजूद हैं, जुमले को सुनिएगा। यही जो दो पॉइंट ऊपर मौजूद हैं, अगर इन्हीं दो पॉइंट से मिलकर बनने वाले लाइन सेगमेंट का स्लोप निकालना हो तो कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, इससे आ जाएगा जवाब।
ठीक हो गई बात बेटा, आगे बढ़ सकता हूँ? अच्छा, अब स्लोप के ना 3 फॉर्मूले आपके सामने हो गए। एक तो बेटा ये m इक्वल्स टू tan थीटा, ये कब अप्लाई होगा? when inclination is known, ये कब अप्लाई होगा? when 2 points are known। और एक और फॉर्मूला है बेटा, वो ये कब अप्लाई होगा? जब इक्वेशन पता हो उस लाइन की। ठीक है, जब उस लाइन में क्या पता हो? इक्वेशन। ठीक है बेटा, यहाँ तक अब सुने। Sir, can you explain the last one? जी, बेसिकली ये जो लास्ट मैंने फॉर्मूला लिखा था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। असल में इक्वेशन अभी तक टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हमने बेटा असल में इक्वेशन का अभी तक टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो वो जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ कवर होगी। मैंने एहतियातन इस फॉर्मूले को यहाँ लिख दिया है। वैसे मैं आपको, चूंकि आपने सवाल कर लिया है, तो मैं बता देता हूँ। अमूमन जिस तरह ये आपके सामने की इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, और ग्राफिकली अगर मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करूंगा ना, तो एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगी। यानी कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन। ये है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक, अगर अब मेरे पास उस लाइन का इंक्लिनेशन नहीं है, उस लाइन पर मुझे 2 पॉइंट्स नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि भाई वो लाइन जो है वो एक्स वाई एक्सिस पे यूं बन रही है, और मुझे उसका स्लोप चाहिए, तो मैं फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, जो कि क्या है? m is equal to minus coefficient of x over coefficient of y minus 2/3। जवाब आ जाएगा। अच्छा, अब सुने वेरीफाई कैसे होगा। लाइन बन गई, -2/3 की एक वैल्यू आ जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि अगर आप इसका डेसिमल रिजल्ट निकाल लेंगे, फिर आप क्या करें कि ग्राफिकली लाइन को प्लॉट कर दिया हमने। ग्राफ के तरीके से प्लॉट होगा, वो भी हमने आगे पढ़ना है। आप यहाँ मौजूद एंगल डी रखे, यानी कि आपने यहाँ डी रखा और एंगल नोट कर लिया, क्या आ रहा है इधर एंगल। जब आपने एंगल नोट किया, ये वाला बेटा एंगल नोट कर लिया, कुछ भी आ रहा है, उस एंगल का जब आप टेंजेंट निकालेंगे ना, तो वही वैल्यू आएगी जो यहाँ -2/3 की आ रही है। तो ये रिकन्फर्म हो जाएगा कि क्यों बराबर है उन तमाम फॉर्मूलों के।
ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात कर रहे हों, ये देखिएगा जरा, सर ये बात रिपीट कर दिएगा ऊपर वाली जरा, मैं नेट थोड़ा स्लो हो गया था। अच्छा बेटा कहाँ से मिस किया था मुझे बता दें थोड़ा सा, तो मैं वहीं से बता दूं। वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने शायद सवाल किया था ना, वहां से मिस हो गया था। अच्छा, मुझसे सवाल ये किया गया था कि ये क्या है ना, तो मैंने बताया था कि भाई हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल सवाल कर लिया गया तो मैं बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला क्या बता रहा है। देखिए ये अमूमन एक लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन की शक्ल कुछ इस तरह होती है, जिसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो हम उसको लीनियर इक्वेशन कहते यूं है कि जब अगर हम उसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो एक लाइन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन बन गई। अब मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो ये फॉर्मूला मुझे डायरेक्टली स्लोप निकाल के दे रहा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई के जरिए। मगर अब मुझे ये जानना है कि ये सारे बराबर क्यों हैं, ये एक ही बात क्यों लिखी हुई है। तो मैंने फिर सोचा कि अगर मैं इस लाइन का ये जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई एक्सिस पर ड्रॉ हुई हुई है, मैंने डी रखा यूं और ये एंगल नोट कर लिया। ये एंगल नोट किया, फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू का मैंने निकाल लिया टेंजेंट, यानी कि मैंने बेसिकली क्या निकाला, मैंने निकाला टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। मैंने उस एंगल का टेंजेंट निकाल लिया। तो एक वैल्यू आएगी डेसिमल वैल्यू, वो डेसिमल वैल्यू इस फ्रैक्शन की डेसिमल वैल्यू के ही बराबर होगी, जो कि इस बात को कंफर्म कर देगा कि ये सब इक्वल है। अच्छा, अगली बात सुने। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है थर्ड और ये है सेकंड, ये है फोर्थ। तो ये जो लाइन ड्रॉ हुई हुई है इसको हम कह सकते हैं बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ये सवाल सेट के टेस्ट में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट में आ चुका है। बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ बनने वाला एंगल क्या है 45 डिग्री, और ये लाइन दोनों क्वाड्रेंट्स को आधे आधे में डिवाइड कर रही है, जिसकी वजह से मैं इसको बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट कह सकता हूँ। अच्छा, अब अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, तो इंक्लिनेशन के मायने हैं इस लाइन का एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल, जो कि क्या आ रहा है 45, ठीक है। और अगर मुझसे कहा जाए कि इसका स्लोप कितना होगा, तो वो होगा m इक्वल्स टू tan थीटा के जरिए वन। तो बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये इंफॉर्मेशन क्या आ रही है,
इंक्लिनेशन आ रहा है 45, स्लोप निकल रहा है 1। और अगर मैं इसको अब मैंने एक और लाइन बना ली। ये जो लाइन है ये क्या कहला सकती है? ये कहला सकती है भाई बाइसेक्टर ऑफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बन रहा है 135 डिग्रीज। कैसे? ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 90, ये 90 है और ये 45 है। देखिए ये 90 यहाँ से यहाँ तक और ये 45, सही, ये 45 है, ये 45 एंगल है और यहाँ से यहाँ तक 90, तो टोटल एंगल हो गया 135। अब अगर हम इसके इंक्लिनेशन की बात करें, सर इंक्लिनेशन का तो मतलब बताएगा इसका दोबारा? मैं आपको बता देता हूँ। इंक्लिनेशन थीटा हो गया 135 डिग्री। एक मिनट बेटा बता रहा हूँ। ये हम इस बात पे वापस आ जाते हैं। कोई भी लाइन जब एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही होती है उस एंगल को इंक्लिनेशन कहा जाता है। तो ठीक है सर, थैंक यू। यहाँ ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है वो 135 डिग्री है। इसका स्लोप ये है भाई इसका जवाब। कर ले नोट इसको। आज की बात यहीं तक ही है, क्योंकि अब जो टॉपिक है अगला वो फिर जब शुरू होगा तो वो फिर जल्दी खत्म नहीं हो पाएगा, वो कंटिन्यूएशन में सर ये ही एंगल चलेगा। 135 वाली बात दोबारा बताएंगे जरा? देखिए ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देख रहे हैं, तो ये एंगल 90 है। और जी सर। ये हमने सेकंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट किया हुआ है, तो ये था टोटल 90, बाइसेक्ट हुआ तो ये हिस्सा कितना हो गया 45, 45, 135 इन टोटल। तो 90 प्लस 45 135 हो गया। ये 10 थीटा वाला सीन सर, लेफ्ट साइड पे। ये 10 थीटा, जी, इंक्लिनेशन वगैरह। तो इंक्लिनेशन तो एंगल हो गया, उस एंगल का आप ठीक है। टेंजेंट निकालें तो आपके पास स्लोप आ जाएगा। 10 ऑफ 135 डिग्री -1 के बराबर होता है। अच्छा -1 है, सॉरी सॉरी। ये सर कर लिया कॉपी।
सही है स्टूडेंट्स, इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अगली मीटिंग में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और उम्मीद है कि आज की सारी बातें आपको क्लैरिफाई हो गई होंगी। इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़।